Okay, good morning everyone. In our last lecture, we have seen the log-based recovery and then concurrency control, and types of log, exclusive mode and shared mode. And this is the compatibility matrix. If requested log is compatible according to this compatibility matrix, then it will allow to acquire the next lock. Remember this one. So first you need to check this compatibility matrix, and it is very easy, like read not conflict, read write similar way, ss true, sx false, xs false, and xx false, right? Generally this is the procedure. First we request the lock, then acquire the lock, and then release the lock. This is the normal procedure. If requested lock is not granted, if requested lock is not granted, then it has to wait. It has to wait. Whenever it is granted, then it will acquire the lock. Remember this one. Let's move to the next one. And I told you yesterday to remember the trial room example. So with continuation of that example, let's start the today's topic, that is the lock based protocol. Lock based protocol. So read the first point. Whatever I said before just 1 minute, it is written over here. Just read it. Online students, is it visible properly? Okay. Only 45 students are present. Okay, okay. Read the first point. A transaction may be granted a lock on a data item if the requested lock is compatible with the locks already held on that data item by another transactions that I told you before just 1 minute. If it is compatible, then and then it is allowed to acquire the next lock. Otherwise, it has to wait. Right? Now, tell me, how many transactions, how many persons can see themselves in a mirror in one room without conflicting? In a trial room, how many persons can see themselves for mirror purpose? For mirror purpose. So this is the story. 9 o'clock आओ, लेक्चर में बैठो, 4 o'clock जाओ, सब कुछ यहाँ छोड़ के जाओ. दिस इज द स्टोरी फॉर एवरी डे. मैंने बोला था, कल ही बोल दिया था. Recall it. If you are not getting the question, let me repeat it. How many persons can see themselves for the mirroring, for the mirror purpose in a one trial room? That's it, simple and number. मैंने बोला भी था कुछ शोरूम से है जिसमें ओपन पूरी वॉल मिरर होती है, उसमें आप देख सकते हो. आप ऐसा करते भी हो क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के साथ गए हो, तो आप चेंज करके ट्रायल रूम में से बाहर आ जाते हो, फिर विथ फैमिली आप देखते हो कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है. So it means at a time on a same data item, it means on same mirror, so many transaction can acquire the which lock? Exclusive mode or shared mode? Shared mode or exclusive mode? Sure? Online students, which mode?
many transaction can acquire the which lock for this purpose. Yes, you are right, shared mode, because shared it means only read. So as you know, right now all of you are reading this slide, right? So it means shared mode में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, no conflict, no problem, like conflict serializability. So many transaction can hold a shared lock. Any number of transaction can hold a shared lock. But if on the same data item, remember this one, this is mandatory, on the same data item. अलग अलग ट्रायल रूम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो no need to discuss it. If one person is inside the trial room and he is in exclusive mode, it means try and mirror, change and mirror. Can we request another types of lock, either in a shared lock or exclusive lock, and can we grant it? एक पर्सन ट्रायल रूम में एक्सक्लूसिव मोड में है, सो दूसरा पर्सन बाहर जो वेट कर रहा है वो रिक्वेस्ट कर रहा है एक्सक्लूसिव मोड और शेयर्ड मोड की. विल इट ग्रांट? यस और नो? यस और नो? Only Dharam. What about others? Yes, it is not allowed because previous lock is on exclusive mode. एक्सक्लूसिव मोड में है तो बाकी एक भी मोड में आप अलाउड नहीं है. इफ इट इज इन अ शेयर्ड लॉक, first one is in a shared lock, then second one may grant the request, second way may get the grant, second को grant मिल सकती क्योंकि read है. See the point. Any number of transaction can hold shared locks on an item, that we discuss. Second, we discuss if it is exclusive lock, then other lock has to wait, other request has to wait. See, but if any transaction holds an exclusive lock, exclusive mode on the data item, then no other transaction may hold any lock on the item, any lock. No one can enter into the trial room like this. Clear? Clear? Any query, any doubt? મોઢા ઉપરથી કેમ એવું લાગે છે? કન્ફ્યુઝ હોય એવું. લોક કરતા તો જાજા તમે કન્ફ્યુઝ લાગો. Do you have any query, any doubt? Next point. If lock cannot be granted, then what we can do? If you are not allowed to enter into trial room, what you will do? We do not have any option. Either leave the mall or wait. मुझे पता है आप क्या आंसर देंगे, सर दूसरा ट्रायल रूम ट्राई करेंगे, एक थोड़ी ना होगा. वी आर कंसिडरिंग आइडियल केस ओनली. ठीक है, तो यू नीड टू वेट. ओके, लेट मी रिकॉल एवरीथिंग. हाउ मच टाइम यू विल वेट? 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes, not more than. Suppose if you are waiting outside the trial room 5 to 10 minutes, then after another person comes and he enters into the trial room, then you need to again wait. एक बंदा जो है अंदर, वो उसके सिबलिंग्स को, कजिन को घुसा देता है और आप वेट कर रहे हो. फिर तीसरा बंदा आ रहा है, वो भी
अंदर घुस गया, आप बाहर वेट करो। चौथा आ रहा है, पूरी फैमिली आ गई, उसके फ्रेंड्स आ गए, तो आप कब तक वेट करेंगे? शाम तक? सुबह के गए, शाम तक वेट करेंगे? नहीं करेंगे। फॉर दैट वी हैव अ टेक्निकल टर्म दैट इज नोन एज द स्टारवेशन. Starvation. If you have to wait forever, or like this scenario, some another transaction may get the grant and you are waiting. आप वेट कर रहे हो, दूसरे को ग्रांट मिल जा रही है ओवरटेक करके, देन इट इज नोन एज द स्टारवेशन. दैट इज नोन एज द स्टारवेशन. डेडलॉक. डेडलॉक हमने कल डिस्कस किया था. क्या है डेडलॉक? व्हाट इज डेडलॉक? What is deadlock? Multiple? Yes, multiple transactions are trying to acquire the same data item at a time. For example, two persons are trying to access the trial room at a time. अब दोनों एक ही टाइम एंटर हो रहे हो, तो कौन पहले जाएगा? पता नहीं. तो उस केस में आप क्या करते हो? अब दो फ्रेंड गए ट्रायल रूम में, एक साथ गए, एंटर हो रहे हो, तो फिर आप क्या करते हो? यस यस. Mutually, by mutual understanding, any one person will enter into the trial room and another will wait. This is the ideal scenario, right? This is the ideal scenario. कुछ लोग ऐसा ही सोच रहे हैं कि सर दोनों फ्रेंड्स से चले जाएंगे साथ. ऐसा नहीं. We are talking about normal people. I'm not talking about abnormal people, right? So that's why I told you I use the word ideal scenario. So एक पीछे हट करेगा. पीछे हट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोल बैक. That's it. Roll back. So any one transaction has to roll back. That's it. So deadlock avoid करने की, deadlock avoid करने की मेथड क्या है? Anyone has to roll back. Then we can avoid the deadlock. And deadlock एक बार हो गया, so we cannot predict how much time it will take. तो उसको रिकवर करना जरूरी है डेडलॉक को. ठीक है? Any query? Any doubt? See the example. How we can use the acquire the lock and release the lock. First, lock as A. It means on data item A, we are requesting the said lock. On data item A, चेक किया A के ऊपर एक भी लॉक नहीं, हमें ग्रांट मिल गई तो हमने लॉक लगा दिया. Then read A. अब A के ऊपर said lock है. Then another transaction grant the exclusive mode on a data item A. Yes or no? Yes or no? दूसरा कोई ट्रांजेक्शन डेटा आइटम ए के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक लगा सकता है? नहीं, क्योंकि कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स याद करो, कंपैटिबल नहीं है. ठीक है. हाँ, सेड लॉक लगा सकता है. ठीक है. सो रीड ए अनलॉक ए. अनलॉक ए इट मींस रिलीज द लॉक ए. नाउ एक्सक्लूसिव लॉक लगा सकता है क्योंकि अनलॉक हो गया. क्लियर? देन आफ्टर लॉक एस बी, रीड बी, अनलॉक बी. तो पहले लॉक लगाते हैं फिर अनलॉक करते हैं. क्लियर? जब तक लॉक है तब तक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स के नो ભણવું હોય તો બહાર હોય. આગળ પાછળ આજુબાજુ વાળાને ડિસ્ટર્બ કરવાની જરૂર નથી. બરોબર? નો ભણવું હોય તો શાંતિથી સૂઈ જાય. So first we need to check the compatibility matrix. If it is compatible, then we can request and we can grant the any type of lock. That's it. So locking protocol is a set of rules followed by all transactions while requesting and releasing the locks.
So best example we have discussed, that is the trial rule, which covers all the topics: deadlock, starvation, locking. Clear? Now still it is continue. जैसे आप पेपर में लिखते हैं ना PTO, so lock based protocol, it is a two-phase lock based protocol. That is the very much important theory. But before going to enter in that, first understand this one. If your transaction, this one is your transaction, it starts from the T begin and ends from the ends at the T end, right? So आपका लॉक कहाँ पे लगेगा? T begin पे और T end पे. बिगिन पे. लॉक अनलॉक कब होगा? बस हो गया. इतना ही याद रखना है. इतना ही याद रखना है. टू फेज लॉकिंग में भी इतना ही याद रखना है. तो दिस इज द कॉमन सेंस. जब बिगिनिंग है तभी लॉक लगता है, जब एंड है तब लॉक खुल जाता है. ट्रायल रूम में एंटर हो तभी लॉक लगता है और बाहर निकलो तब लॉक ओपन हो जाता है. दैट्स इट. सो दिस इज when execution starts, execution of transaction starts, it will ask to control manager, concurrency control manager for the lock. So this is lock request and this is execution of transactions and this is lock release. This is your lock release. Clear? Now consider this schedule. अब पता चलेगा किसको कितना समझ में आया. Now consider this schedule. P3 first request the exclusive lock on a data item B. Then perform some operation, read B minus 50 and write B. Then T4 request the said lock on a data item A. My question, first question. Will T4 grant the said lock on data item A? Yes or no? T4 को said lock की grant data item A पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? Yes or no? Yes. Why no? Good. This is the effect, side effect. Who else are saying the no? Answer is yes. It is clearly mentioned exclusive lock is on B and we are requesting on A. સમજાણું? એટલે જ કહું છું કે ડિસ્ટર્બ કરવા વાળા ડિસ્ટર્બ કરી દેશે, આપણે આજુબાજુ વાળા હેરાન થશું. તે ભલે આચો આન્સર દીધો પણ તારા લીધે બાજુ વાળો ફેલ થઈ ગયો. પણ મને ખબર છે તું દક્ષ સારે અને બાજુમાં વાત કરે છે એટલે એ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય એટલે એનું કોન્સન્ટ્રેશન નથી થતું. હવે તું એમ કહેશ કે that is not my problem, so that is my problem. That's why I told you. Clear? So T4 will get the said lock on data item A. Next move, read a lock SB. Now my second question. Will T4 get said lock on data item B? Yes or no? Will T4 get the said lock on data item B? Yes or no? How many of you are saying no? How many of you are saying yes? Why yes? Overconfidence હતો ને યા ઉતરી ગયા. Read this point. Read this point. In this lecture, I have given this task. Read this first point at the starting of the lecture. This is the problem. That's why I am scolding you. क्या लिखा है? अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है
देखो ये कंपेटिबिलिटी मैट्रिक्स, डेटा आइटम बी के ऊपर कौन सा लॉक था, क्या नाम है तेरा? विवेक, आर विवेक, विवेक सरनेम सतानी, विवेक सतानी, ओके। बी डेटा आइटम के ऊपर कौन सा लॉक था, एक्सक्लूसिव, और डेटा आइटम बी के ऊपर टी फॉर कौन सी रिक्वेस्ट दे रहा था, सेड लॉक की। यहाँ पे कंपेटिबिलिटी देख, एक्स है और एस की रिक्वेस्ट कर रहा है, ट्रू है फॉल्स है, तो कैसे यस हो सकता है? क्लियर? हाँ, ये ઊંધું સમજાય જાય, લખો એ ઊંધું જ પછી, તકલીફ જ ઈ છે ને. Clear? Rest of the answers are correct. T4 cannot get said lock on data item B. Okay? Now let's move further. Next operation क्या होगा, T3 सीक्वेंस में ही जा रहे हैं ना. T3 is requesting lock X. It means exclusive lock on data item A. In the third question, will it get yes or no? Will it get exclusive lock on data item A? Vivek. T3 will get the exclusive lock on data item A? Yes or no? Probably no. Let's know. Who are saying no? Why no? थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे, एक्सप्लेन कर थोड़ा सा डिटेल, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके कैसे इजी वे में समझा देता हूँ, ऐसा मैं नहीं समझा तू जो बोलना चाहता है. नहीं कर पाएगा? हाँ, किसके? ओके, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या है वो बता. सॉल्यूशन क्या है? नहीं मिलेगा, दैट्स इट, राइट. फिर आगे क्या करेंगे वो बता, मैं वो पूछ रहा हूं. आगे क्या करेंगे? डोंट बी कंफ्यूज, बिका यू आर राइट, बट आगे क्या करेंगे वो बता. So that's why I'm telling in every lecture, use your brain if you have. कॉमन सेंस की बात है, आज के लेक्चर में ही बोल दिया रोल बैक, ट्रायल रूम में 2 जन जा सकते हैं, नहीं जा सकते, यही हुआ ना सिनेरियो. T4 तो ऑलरेडी ट्रायल रूम में है, तो आपने बोल दिया कि T3 को एक्सक्लूसिव लॉक ऑन डेटा आइटम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? नहीं मिलेगा क्या करना है? रोल बैक. रोल बैक कब करेंगे? जब डेडलॉक होगा या फिर 2 साथ में हो गए, बट ये 2 साथ में तो नहीं है ना. T4, yes, T4 ऑलरेडी लॉक ऑन डेटा आइटम A by said. आफ्टर फ्यू टाइम्स, यहाँ पे देखो 2 ऑपरेशन के बाद T3 एक्सक्लूसिव की डिमांड कर रहा है, तो रोल बैक का ऑप्शन ही नहीं है, उसको वेट करना पड़ेगा. वेट इज द परफेक्ट आंसर. समझ में आ रहा है? आप ऐसा सोच रहे हो सब लोग, सर हमें कहाँ पूछने वाले हो. मैं आई एम जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन टू चेक योर नॉलेज. आई एम नॉट जजिंग यू, ऑल्दो यू आर जजिंग अस without capability, because you are not capable to judge any faculties. But आप सोचो, वाइवा होने वाला है ना आपको, एक क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंस से नहीं दे पा रहे. while you are learning, although you are free to ask any number of questions to faculty, फिर भी आप नहीं पूछ सकते. पूछते नहीं पूछ सकते नहीं, आप पूछते नहीं. पूछते तो भी कैसा नॉनसेंस क्वेश्चन.
जिसका आंसर खुद से ही मिलता है, खुद के स्टेटमेंट से, या फिर 10-15 मिनट का रिकॉल कर लो तो ही मिल जाएगा, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड है ही नहीं, आपका ध्यान कहीं और भटका हुआ है। लेक्चर लेब में हंसने में से बाज नहीं आते, बातें ही करनी है, बाकी नया कुछ नहीं कर रहा। आई एम द मैजिशियन, मैंने बोला था ना, इधर का कान इधर से पकड़ा रहा हूं और कुछ नहीं। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी विच प्रैक्टिकल दिखाया जाना, अभी वही चल रहा है और कुछ चल रहा है, कुछ नया है, बताओ आप ही। जो लोग मेंटली 100% प्रेजेंट है वो लोग बता सकते हैं, बाकी के नहीं बता सकते। और एक तो एग्जांपल लाइव ही दे दिया, जो जिसको डिस्टर्ब करा बोला मैंने तो आंसर सही दिया, आफ्टर ओनली 2 मिनट्स उसका ही आंसर गलत आया, बेस्ड ऑन द प्रीवियस आंसर ही था ना, तो इसलिए तो हमें डांटना पड़ता है ना आपको। If you are not interested, then just leave it, but do not disturb others. And how much you know, that we know. वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कितना आता है। और on recording you are not asking any question, that is the big proof. Either you know everything, either you don't know. बाद में जाके ऐसा बोलेंगे आप कि सर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो देन यू आर इन फॉल्ट। जैसे अभी बोला मैंने तो आंसर सही दिया, मैंने तो अच्छे से पढ़ाया, आपने क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा और वाइवा के टाइम ऐसे पूछा है, तो आप ऐसे बोलेंगे कि सर ने कुछ नहीं पढ़ाया तो मुझे कुछ नहीं आता। बट यू आर नॉट, all of you are sleeping like this, I can say proudly. I do not have too much time to waste on you. What is the scenario in this schedule? कोई बता सकता है कंक्लूजन ऑफ दिस शेड्यूल? आपने बोला, लेट मी कंक्लूड ऑल द पॉइंट्स। आपने ऐसा बोला कि T3 एक्सक्लूसिव लॉक B के ऊपर है और T4 को वेट करना पड़ेगा, एंड T4 सेट लॉक A के ऊपर है तो T3 को वेट करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? क्या हुआ? डेडलॉक। डेडलॉक हुआ ना। Neither T3 nor T4 can make the progress. क्यों? क्योंकि देखो T3 ने एक्स लॉक लगाया B के ऊपर, फिर परफॉर्म किया B तक परफॉर्म कर दिया, फिर क्या किया? उसको वेट किया, उसको रिक्वायर्ड है A की, वो मिलने वाला नहीं है, तो वहां पे स्टॉप हो गया T3। T4 में भी देखो S A के ऊपर लग गया, उसके बाद कुछ परफॉर्म किया, एस बी की रिक्वायरमेंट रखी, लेकिन मिलने वाला नहीं है, तो T4 भी आगे नहीं कर पाएगा कुछ, T3 भी नहीं कर पाएगा। यस, T3 को T4 की जरूरत है और T4 को T3 की जरूरत है। जब दोनों में से एक लॉक रिलीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डेडलॉक रिजोल्व हो जाएगा। एक लॉक रिलीज मतलब रोल बैक हो गया, समझ में आ रहा है? So that this is the deadlock. This schedule contains the deadlock. Agree? समझ में आ रहा है? सिंपल है। Read this point. Neither T3 nor T4 can make progress because this reason. And such situation is now called a deadlock. To avoid this deadlock, I will give you a time. To avoid this deadlock, anyone has to release the lock or roll back. किसी एक को रोल बैक करना पड़ेगा। It means lock release करना पड़ेगा। Now read it. Whatever we have discussed, it is written over here. क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं कि सर रीड कर रहे हैं स्लाइड में से, मैं उसके लिए आंसर बता रहा हूँ। सब ने कुछ लोग, I am not just reading the slides points, I am reading the points after explaining with easy example, so you cannot blame me. कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, so that is their problem. Do you have any query, any doubt in this? Online students, offline students?
Let's continue this one. रिकॉल ट्रायल रूम में वो अपने सारे कजिन्स को लेके आता है, फ्रेंड्स को लेके आता है, और आप कितना वेट कर रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज स्टारवेशन. सो यहाँ पे भी P4, सपोज दिस इज वन सिनेरियो, P4 सेड लॉक A के ऊपर लगाया है and P3 is asking for exclusive lock on data item A. Right now P3 is waiting. Suppose after few times P5 comes and requests the X lock on data item A or said lock on data item A, any type of lock on data item A, and he grant, उसको मिल गई. तो T5 A के ऊपर डेटा आइटम के ऊपर लॉक लग गया, ये क्या करेगा? P3 ऑप्शन ही नहीं, वेट करना पड़ेगा. फिर T6 आया, उसको भी वेट करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? तो दैट इज नोन एज द स्टारवेशन. Starvation is also possible if concurrency control manager is badly designed. badly designed है या फिर लागवक जो हम बोलते हैं. समझ में आ रहा है? So transaction may be waiting for an X lock on item while a sequence of other transaction, not only 1, 2, sequence of other transaction requests and are granted the S lock on the same item, then it is known as the starvation. उसमें T3 को क्या करना पड़ेगा? एवरी टाइम रोल बैक करना पड़ेगा. चलो ठीक है, ये चेंज करके है, ये चेंज करके है, ये चेंज करके है, तो वो पूरा दिन वेट फॉर एवर जैसी सिचुएशन हो जाएगी. सो डेडलॉक एंड स्टारवेशन, दिस टू टर्मिनोलॉजी, एंड थर्ड वन इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. दिस थ्री टर्मिनोलॉजी विल कम इनटू अ नेक्स्ट सेमेस्टर इन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो अंडरस्टैंड दिस वन. सो स्टारवेशन कैन बी मैनेज इन फॉलोइंग टू वेज. There is no other transaction holding a lock that arise a certain types of conflict. जैसे conflict हो, उस टाइप के लॉक के ट्रांजैक्शन अलाउड ही नहीं. सो स्टारवेशन जैसा कुछ आएगा ही नहीं, राइट? So there is no another transaction who requested a lock before any other transaction and is still waiting to acquire a lock. It means sequence में ही आओ, पहले जिसने रिक्वेस्ट की उसका वेटिंग में, फिर बाद में जिसका है. सपोज आप मुझे अभी क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, और मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ, उससे पहले दक्ष पूछ रहा है तो दक्ष को रिप्लेस कर आंसर दे रहा हूँ, उसके बाद में जय पूछ रहा है तो उसको आंसर दे रहा. आप कितनी बार वेट करेंगे? आप बोलेंगे छोड़ो, मुझे क्वेश्चन ही नहीं पूछना, सर का एटीट्यूड देखो, मुझे आंसर ही नहीं दे रहे हो. सो दैट इज स्टारवेशन. लेकिन स्टारवेशन अवॉइड कैसे हो सकता है? सीक्वेंस में, पहले जिसने क्वेश्चन पूछा उसको मैं आंसर दूं, फिर दक्ष को, फिर जय को. समझ में आ रहा है? अगर वो मैं सीक्वेंस फॉलो करूं देन नो स्टारवेशन. और स्टारवेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इज इट गुड और बैड? स्टारवेशन इज गुड और बैड? बैड. इट मींस इट शुड नॉट अराइज. सो एवरी टाइम वी नीड टू टेक केयर स्टारवेशन विल नॉट अराइज. ये ध्यान रखना है. सेकंड क्वेश्चन, डेडलॉक इज गुड और बैड? डेडलॉक इज गुड और बैड? बैड. सो डेडलॉक भी नहीं होना चाहिए. समझ में आ रहा है? So that's why we need to do the serializability, schedule and everything. समझ में आ रहा है? तो हमें प्रॉपर वे में टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है. क्लियर? अगर हो रहा है तो अवॉइड करना है. फोटो मूकी दे, फोटो मत पढ़ो. ओके, नेक्स्ट थियरी. प्रीवियस वन जो भी डिस्कस किया वो पिटफॉल्स है, डिसएडवांटेजेस, स्टारवेशन एंड डेडलॉक. नेक्स्ट थियरी इज द टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल. As I told you, there is two theory: two-phase commit protocol and two-phase locking protocol. In the two-phase commit protocol, we have a two-phase: prepare and commit. Here in two-phase locking protocol, we have a two-phase. First one is the growing phase, and second one is the shrinking phase. Growing phase and shrinking phase. First phase, growing. What do you mean by growing? Growing simple meaning. Growing का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग.
इंक्रीज, गुड, इंक्रीज। श्रिंकिंग का मतलब डिक्रीज, ओके फाइन, होल्ड इट, ओके। इफ यू आर क्लाइंबिंग द माउंटेन, तो सिर्फ क्लाइंब ही करना है, वहां जाके साधु हो जाना है? नहीं ना। सो आप नीचे उतरे तो सही, उतरेंगे ना। सो इमेजिनेट वन माउंटेन लाइक दिस। So in increasing, you are climbing the mountain, it means it is in increasing, that is the growing phase, right? You will find one point. At that point you will step down, right? वहां से आप डिक्रीजिंग मैनर में, श्रिंकिंग मैनर में नीचे उतरेंगे। समझ में आ रहा है? So that point, this point, that point is known as the lock point. That point is known as the lock point. So after lock point, you cannot climb. Compulsory, you need to step down. समझ में आ रहा है this scenario? So growing phase and shrinking phase यही है। So growing phase में क्या है? Only we can request for the lock. Only we can request for the lock. We cannot release the lock. सिर्फ आप लॉक रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन ग्रोइंग फेज में, रिलीज नहीं कर सकते। तो श्रिंकिंग में क्या होगा? आप रिलीज कर सकते हो, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। दैट्स इट, हो गया। सो दिस इज टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। लेट्स सी टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। फर्स्ट फेज, ये डायग्राम तो पहचान का है, मासी का भाई है ना पहले, ठीक है। टी बिगिन, फर्स्ट फेज, ग्रोइंग फेज। ट्रांजेक्शन में ऑब्टेन द लॉक, ट्रांजेक्शन में नॉट रिलीज द लॉक। ये ग्रोइंग फेज हो गया, क्योंकि लॉक आपने ही बोला था, मैंने नहीं बोला था। लॉक कहां पे लगता है? आपने बोला था टी बिगिन पे। ये आपने ही बोला था कि लॉक कहां पे लगता है। दैट वाज माय क्वेश्चन। आपने बोला था टी बिगिन पे। अब ग्रोइंग फेज में क्या लगता है? लॉक ही लगते हैं ना। तो लॉक कहां पे लगते हैं? टी बिगिन पे। उसका मतलब क्या हुआ? ये ग्रोइंग फेज है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट श्रिंकिंग फेज, ट्रांजेक्शन में रिलीज द लॉक, इट कैन नॉट ऑब्टेन द लॉक, इट मींस टी एंड होगा, वो आपका क्या होगा? श्रिंकिंग फेज होगा। क्लियर? इसको ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना, सेंटर में से इसको ऊपर उठा लो, ट्रायंगल जैसा, माउंटेन जैसा हो जाएगा। तो जो पीक पॉइंट है उसको आप लॉक पॉइंट बोल सकते हैं। सो लॉक पॉइंट के पहले ग्रोइंग फेज, लॉक पॉइंट के बाद श्रिंकिंग फेज। समझ में आ रहा है? आप माउंटेन इमेजिनेशन में याद रखो। आपको अगर एग्जाम में ड्रॉ भी करना है, लिखना भी है, तो माउंटेन भी कर सकते हो, ये करना जरूरी नहीं। समझ में आ रहा है? सो दिस इज to ensure the serialized transaction based on the lock points. Lock point is the point where any transaction can acquire the final lock. Final lock it means last lock. उसके बाद नीचे ही उतरना है, उसके बाद वो रिलीज ही हो गए लॉक। सो लॉक पॉइंट इज द फाइनल पॉइंट, पिक पॉइंट। क्लियर? नाउ सेकंड वन, we shall provide a mechanism for upgrading a shared lock to an exclusive lock. shared lock में क्या होता है? only read. exclusive में क्या होता है? read and write. so read and write से उसमें एक ऑप्शन, यहाँ पे दो ऑप्शन। सो वो अपग्रेडिंग बोलते हैं कि डाउनग्रेडिंग बोलते हैं? अपग्रेडिंग बोलते हैं ना। विंडोज 95 टू 98 जा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? अपग्रेडिंग। 95 से 93 जा रहे हो, दैट इज द डाउनग्रेडिंग। सो यहाँ पे एक ही फैसिलिटी हमें रीड की मिल रही है, उस फैसिलिटी में राइट की फैसिलिटी ऐड कर रहे हो, इट मींस उसको अपग्रेडिंग बोलते हैं। क्लियर? सो अपग्रेडिंग इट मींस शेयर्ड लॉक टू एक्सक्लूसिव लॉक, दैट इज द अपग्रेडिंग। डाउनग्रेडिंग इट मींस एक्सक्लूसिव लॉक टू शेयर्ड लॉक, दैट इज नोन एज द डाउनग्रेडिंग। तो अपग्रेडिंग कहां पे होगा? ग्रोइंग फेज में और श्रिंकिंग फेज में? ग्रोइंग फेज में। एंड डाउनग्रेडिंग श्रिंकिंग फेज में। रीड दिस पॉइंट। अब देखो, सोचो आप कितने इंटेलिजेंट हो। अगर आप प्रेजेंट
रहते हो मेंटली, आप खुद ही आंसर दे रहे हो, वही पूरा स्लाइड में लिख रहा है, पूरा स्लाइड में वही लिखा है। सो आपको सिर्फ मेंटली प्रेजेंट रहने की जरूरत है। बीच बीच में आपका कनेक्शन टूट जाता है और हो जाते हो। क्लियर? तो हमने डिस्कस किया, वो यहाँ पे लिखा है, ट्रांजेक्शन रिसीव द लॉक एक्स एंड कन्वर्ट द लॉक एस टू लॉक एक्स अपग्रेडिंग। इट मींस ये 3 पॉइंट ग्रोइंग फेज में हो सकते हैं। बाकी के 3 पॉइंट रिलीज लॉक एस, रिलीज लॉक एक्स एंड डाउनग्रेडिंग, ये 3 पॉइंट श्रिंकिंग फेज में होगा। क्लियर? ये 3 पॉइंट हो गए तो आपकी सीरियलाइजेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। सीरियलाइजेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी तो कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होगा और शेड्यूल प्रॉपरली जाएगा, तो ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्मूथली चला जाएगा। क्लियर? It has a two type. First is the strict two-phase locking protocol, and second one is the rigorous two-phase locking protocol. This is the continuation. That's why I'm continuing. Two-phase locking में ये सब लिखना ही है। ग्रोइंग श्रिंकिंग फेज, उसका एक्सप्लेनेशन, और ये 2 टाइप्स है, वो फेज थे, ये टाइप्स है। आप लोग वाइवा में क्या करते हैं, हम पूछते हैं ना कि 2-phase लॉकिंग प्रोटोकॉल बताओ, तो आप ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग इतना ही बताते हैं। दिस इज द टाइप्स। if we are asking types of two-phase locking, then you need to tell us this one, strict two-phase and rigorous. strict में क्या है? strict it means strictly फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? ट्रांजेक्शन में रिलीज ऑल दी सेड लॉक्स आफ्टर द लॉक पॉइंट, बट कैन नॉट रिलीज एनी ऑफ द एक्सक्लूसिव लॉक। मतलब क्या हुआ? स्ट्रिक्टली सिर्फ सेड लॉक ही रिलीज हो पाएंगे इन अ श्रिंकिंग फेज। आफ्टर लॉक पॉइंट सिर्फ सेड लॉक ही रिलीज कर पाएंगे, एक्सक्लूसिव लॉक रिलीज नहीं कर पाएंगे until the transaction commits or abroads। जब तक कमिट नहीं हो जाता तब तक एक्सक्लूसिव लॉक नहीं हो पाए। आप सोचो, अगर एक्सक्लूसिव लॉक रिलीज कर देते तो क्या होता? दूसरा कोई ले लेगा, दूसरा कोई ले लेगा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक्सक्लूसिव में राइट ऑपरेशन है। तो राइट ऑपरेशन आप कर रहे हो, आप कुछ बुक में लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल दक्ष अभी कुछ लिख रहा है, ठीक है, मैं यहां से बुक उसकी छीन लेता हूं, उसका मतलब क्या हुआ? और मैं रीड कर रहा हूं उसने क्या लिखा, उसके बाद मैं वापस बुक दे देता था, वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया क्योंकि उसने अभी तक कमिट नहीं किया है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूसिव लॉक रिलीज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक ट्रांजैक्शन कमिट और एब्रोड नहीं होता तब तक। कमिट हो जाए तो एक्सक्लूसिव लॉक रिलीज करने से कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सो अगेन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की थियरी याद रखनी है। सेकंड, रिगरस टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। ट्रांजैक्शन में इज नॉट अलाउड टू रिलीज एनी टाइप ऑफ लॉक, सेड ही नहीं एंड एक्सक्लूसिव भी नहीं। एक भी लॉक रिगरस में जब तक कमिट ना हो जाए तब तक रिलीज नहीं करना। दैट्स इट। दिस इज द टू टाइप्स ऑफ लॉकिंग प्रोटोकॉल्स। क्लियर? डन? डू यू हैव एनी क्वेरी? Any questions? Online students? So from next lecture, we will continue the multiple granularity and few topics which we have to go through. If you do not have any query, then paste your enrollment number into a chat.